Good evening, friends. This is Shubha Lakshmi from I Need to Watch Foundation, and today we are having our first webinar on adoption of stray animals. This is part of our celebrations which are having. We have started from 14 January, which is celebrated as Animal Welfare fortnight, and as part of that, we have a series of activities which are planned throughout the week, and today we are having a webinar. And this webinar we are doing with Sabha Patankar, who is basically an animal lover. She's a Mumbai based animal lover, and will be soon, I'll soon get her online. So let's hope that okay, so far she has not come. So till she joins, uh, apologies for earlier delays. There has been glitches that we have been facing. So yeah, Sabha is there. Sabha, great. Thank you so much for joining. I'll just bring you on the screen. Sabha, please accept my request for. Uh, Hi, yes, Sabha. finally. Hi, Sabha. Yes. Uh, my Finally. my my apologies that this feature you can't access from laptop. It has to be a mobile That's based okay, only, that's and okay. I मुझे भी was पूछना trying चाहिए from था. laptop. So Yeah. great. So let me see if I can change the layout of this screen. I should be able to do that if I just no. wish मेरे दूसरे account से हुआ होता, तो this is my personal account. Okay. Fine. So, but I think we will go. Hmm. We'll just get started. So, thank you for joining us today. Thank you for asking me to join. This is a new No, experience, I would say. no, A this is little a bit new experience nervous. for us also. It's a new experience for me, particularly because I'm not known from this sector. I'm more a wildlife person, and so I'm also learning, and that is a precise reason that why I wanted to connect with people like you. Okay, friends, if you're Hi, joining us everyone. today, yeah, if you're joining us today, please let us know from where you are joining, and let us know if you're already having pets. Let us know if you're working in the field of animal welfare, or you're just interested, or you're an animal lover. Just tell us something about yourself so we get an idea about who is actually watching us. And I'm going to ask a couple of questions to Sabah, and Sabah is going to do more of the talking. So once again, I would like to welcome you all. So Sabah, to start off with, I wanted to, because these are all questions which I want to ask you, basically. So I want to know, Sabah, that when you like I've actually, because I've seen you on so many Facebook groups, so I've nicknamed you as an adoption specialist, Thank you. because you have been successfully getting the stray animals adopted, and that is a phenomenal job, I would say, and you are able to do that. That's so. I'm really curious to know how you do it. So my first question to you, Sabah, is that first of all, you tell a bit about yourself. That what really made you to enter this field. Well, so my name is Sabha Patnankar. I'm from Mumbai. और मैं 2 साल पहले अभी इंडिया में मूव हो गई, so for good. एंड जब मैं मूव हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं पूरा टाइम अपना ये एनिमल वेलफेयर पे लगाऊं, बिकॉज बचपन से करते हुए आई हूँ, लेकिन बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज डूइंग बैक एंड फोर्थ, so मैं फुल फ्लेज नहीं कर पा रही थी. तो फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू. एंड या और शुरू जहाँ तक मैंने किया कब से, so my first rescue was around when I was 7-8 years old, and it was with Wow. my mom. Yeah, it was with my mom. हमारे कॉलोनी में एक ममा डॉग थी जो प्रेग्नेंट थी, और वो 1-2 दिन गायब हो गए. देन वी गॉट टू नो कि इसकी डिलीवरी हो गई, और फिर जब हम गए देखे कि 2 छोटे पपीज है. तो मैं और Hmm. मेरी मॉम उसे रोज फीड करने जाते थे 3 टाइम दिन में, और कभी मैं Hmm. अकेली जाती थी. तो एक दिन मैं गई और मैंने देखा कि वो ममा डॉग उठ नहीं रही है खाने के लिए, बट बिकॉज Oh. आई वाज यंग सो आई डिडंट रियलाइज दैट शी इज नो मोर. So I went to Oh. my mom, and my mom, and she just said, it's time for us to take them home now. And that's when I got to know about adoption at age of 7, 8.
बिकॉज माई Wow. मॉम इज लाइक कि अब हम इनको थोड़ा बड़ा करके अडॉप्शन में डाल देंगे। सो तब से हम माँ बेटी की जर्नी शुरू हो गई अडॉप्शन और रेस्क्यूज का, एंड उसके बाद हमने काफी सारे रेस्क्यूज किए। आई वांट टू शेयर अ बिट अबाउट दैट इफ यू डोंट माइंड। Yeah, कि sure, sure. Go ahead, go ahead. या So मेरे first of all, होम टाउन में I would या like to say that you are really lucky that you got inducted into this sector at very young age. I think your वेरी mom यंग, did a fantastic job, यू कैन and से इट्स इन I माय ब्लड। yes, यू नो that's so nice to या know, because we या also believe that now that children are, it's the best way to start is to या start getting children interested into it. So go on. या So what is that या interesting story you want to share with us? सो लाइक आई सेड, मैंने बचपन से ये सब देखा है थैंक्स टू माय मॉम, बिकॉज शी यूज्ड टू टेल मी, जब वो छोटी थी तब वो भी ये सब करती थी, एंड हर पेरेंट्स यूज्ड टू हेल्प हर आउट। तो उस वक्त हमारे होम टाउन में ज्यादा ब्रीड्स का नहीं क्रेज था, there were very few breed dogs and cats, और कोई सेल भी नहीं करता था, but there was some illegal breeder used to come in our city, जो रोड पे ये डक्स, रैबिट्स, कलरफुल चिकन्स और बर्ड्स को सेल करते थे। सो व्हाट माय मॉम यूज्ड टू डू, she used to go and rescue them. She used to fight on the road with them, कि आप लोग गलत कर रहे हो। रेस्क्यू करती थी जितना होता था उतने पॉसिबल बच्चों को घर लाती थी, और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनका ट्रीटमेंट करके फिर उन सबको अडॉप्शन में डाल देती थी। सो इफ यू Wow. आस्क मी हाउ मेनी अडॉप्शन वी हैव डन, आई हैव नो नंबर, लेकिन जब से मैंने ये अकाउंट बनाया है फेसबुक का, August 8 2020, तब से अराउंड 35-40 अडॉप्शन में कर पाई हूँ, जिनसे कुछ फेल Wow, भी हुए हैं, that's great. I think I लेकिन would like to give ऑल a clap to you credit, thank for you, doing all that. credit goes to my mom. Like I said, it's in my blood. मेरी mom अभी at age of 70, she still does rescues, she still feeds, she goes out of her way to help. So अभी भी मैं कहूँगी मेरी mom के level तक मैं पहुंची नहीं हूँ. So yeah, I'm trying my best to reach her level. I think that's wonderful. I would like to really meet your mom also. So that's such a fantastic like thing you have done, that you have rescued so many. So tell me, Sabha, how do you go about? Because I have seen rescuing rather is easy, fostering is easy, but putting up a stray animal for adoption is the most difficult task, and It you is. chose It to specialize in that. So is. tell me, how do you go about? It is because to find a genuine family, a trustworthy family is very difficult. कुछ फोन कॉल से नहीं समझ आता, at times you just have to trust your guts कि नहीं फैमिली अच्छी है and just go ahead, so जितना एक टेंशन अडॉप्शन होने तक रहता है उतना अडॉप्शन होने के बाद भी रहता है। इट डजंट एंड देयर कि बेबी अडॉप्ट हो गया एंड दैट्स इट, बेबी अडॉप्ट हो गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सर से चली गई, नो, इनफैक्ट टेंशन बढ़ जाता है। रेगुलर अपडेट्स लो, सामने वालों को गाइड करो, you have to keep an eye, and I have to keep an eye on so many babies and families that you have no idea. लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हो, अडॉप्शन हो गया इट डजंट मीन कि आपका काम हो गया, बट एंड ऑफ द डे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो खुशी मिलती है कि आपकी वजह से एक बच्चे को घर मिल गया, दैट्स अ नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस। सो इसमें बहुत पेशेंस होना चाहिए, बहुत मतलब यू हैव टू नो कैसे बात करना है लोगों से, तो आप क्या जैसे करती हैं, मतलब आप like tell me the steps that you follow to put up a stray animal for adoption, because why I'm asking you this question is that there will be many other rescuer people who would like to do this but they're unable to do so. Maybe your magic might work, so you can share your trade secret how you do it. पहले तो spend time with them, get to know the behavior कैसा है उनका वगैरह। I mean ऐसा नहीं कि एक पपी मिल गया उसको अडॉप्शन में डाल दिया, at times मजबूरी में करना पड़ता है, पर अगर मौका मिले तो spend time so you will get to know about the puppy, फर्स्ट स्टेप तो वो है। Okay. मुझे वो Okay. अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती नहीं है बिकॉज में लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि अडॉप्शन में हेल्प करो एंड दैट्स हाउ आई हेल्प देम, बट मैं उनसे पूछती हूँ भाई बेबी का बिहेवियर कैसा है, सो आई कैन एक्सप्लेन सामने वाले लोगों को। पहला स्टेप तो ये है, शेयर एज मच एज यू कैन, वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड कि हमें सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिल गया है, यूज दिस प्लेटफॉर्म, शेयर एज मच एज यू कैन, एंड मतलब बोलते हैं ना, और बात करना, लाइक आई सेड, बात करना आना चाहिए आपको सामने वाले इंसान के साथ, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स थे, जितने नर्वस आप रहते हो उससे ज्यादा नर्वस वो रहते हैं। इग्नोर मत करो सेइंग कि अरे ये नया है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, सो वो कैसे हैंडल करेंगे। हमें भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट टाइम हम सीखे। इनफैक्ट ऐसे लोगों को और इनकरेज करो कि आप अडॉप्ट करो, आप लोगों को बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था वगैरह, तो ये सब चीजें आना चाहिए।
तो कुछ लोगों का ऐसा है कि फर्स्ट टाइम पेरेंट है मत करो वगैरह, तो आई डोंट बिलीव इन दिस. I believe Okay. कि you should make them believe that we gonna be there every step of the way, so don't worry. So मैं बहुत बात करती हूँ, like एक conversation पे डर नहीं होता है, 2-3 तो आप conversations होते मतलब हैं. you speak to them directly on phone. Directly on phone, yeah. It's not Okay. WhatsApp के through हो गया, photo exchange and all. You have to speak to me. I have to get to know you. At least I try to get to know them. And मैं सिर्फ एक member से बात नहीं करती हूँ. I try to speak to all the members if everyone is happy or not. So you have to be very careful adoption के इसमें. You know, तो जितना easy लोगों को लगता है वो इतना easy नहीं है. It's a very नहीं stressful easy है process. नहीं. Yeah. The whole idea कि हम ये webinar कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये easy नहीं है. Yeah. That is the But some reason. people think कि भाई मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं अरे बहुत क्यूट है अडॉप्ट हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. सामने वाले इंसान को समझाना चाहिए चीजें है ना. आप मुझे बताइए कि एडॉप्शन करवाना कितना जरूरी है स्ट्रे एनिमल्स का. स्ट्रे I mean, एनिमल्स को लोग अडॉप्ट क्यों करें. देखो मेरा मानना ये है कि हर स्ट्रे डॉग या कैट को अडॉप्शन की जरूरत नहीं है. अगर वो कहीं ठीक है, जैसे मेरे सोसाइटी में देयर मोर देन 22 कैट्स, मुझे सोसाइटी वालों ने कहा भी इनको अडॉप्शन में डाल दो. क्यों डालो? दे आर हैप्पी ओवर हियर, उनको खाना मिल रहा है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है. सो क्यों? अडॉप्शन उन्हीं बेबीज का करो जो सेफ नहीं है. अगर कोई एरिया में सेफ नहीं है तो ही उनका अडॉप्शन करो, तो जरूरी है बिकॉज दे आर नॉट सेफ. बट हर एक स्ट्रे बेबी डजंट नीड अडॉप्शन. दैट्स व्हाट आई बिलीव. some people agree, some people don't, but मेरा बिलीव ये है. ओके ओके ओके. और आपको क्या लगता है अगर कोई 3 इम्पोर्टेंट चीज आपको बतानी है, जो 3 important key points which are very much necessary if anybody is looking for adoption, तो ये 3 चीजों बहुत जरूरी है. What are those? I mean, आप किस किस इसमें पूछ रहे हैं? सामने वाले इंसान को श्योर होना चाहिए. एडॉप्शन करवाने के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीजें क्या होती है. आपने बहुत सारा कुछ बता दिया, लेकिन एक स्पेसिफाई कर देंगे तो एक यादगार देखो, यू हो हैव जाएगा. टू चेक. अगर सामने वाले की बात है तो सामने वाले के इसमें यू हैव टू चेक. पहली बात तो मैं घर के बारे में पूछती हूँ. घर ओके. बड़ा घर होना के बारे चाहिए. तो कुछ लोग माइंड करते हैं कि ऐसा क्यों, पर में. मेरा रीजन ये है कि you should be comfortable, the dog should be comfortable, especially dogs के केस में. The house should be at least 1 BHK. स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं चलेगा. it should be 1 BHK. कैट के मामले में doesn't matter. कैट के मामले में ऐसा है कि नेट होना जरूरी है. ओके, डॉग्स के मामले में 1 BHK होना चाहिए. फिर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो क्या नहीं, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप पपी अडॉप्ट कर लो एंड देन बाद में को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. तो ये सब होना चाहिए. एंड देन यू हैव टू बी 100% श्योर. चेक विथ योर फैमिली कि भाई सबको चलेगा क्या नहीं, कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं वगैरह क्या नहीं. फाइंड आउट इफ यू हैव एनी एलर्जीज और नो. तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. ये 3 तो पहले वो दिमाग हाउस में फिलहाल आ रही है. चेकिंग होता है या हाउस चेकिंग अभी कोरोना की वजह से नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन हम हाँ हाउस वैसे जस्ट वीडियो मांगते हैं. हाँ जैसे अभी तुमने जो मेंशन किया वो सब चीजें, तो दैट इज वन Yeah. पार्ट. व्हाट एल्स, what is the I think you mentioned about patience is what is very important from someone, Yeah. so you don't give up if you're trying to नहीं, get दो some animals यही है. adopted. इसलिए मैंने कहा ना कि जब अडॉप्शन में आप डिसाइड करते हो दैट यू वांट टू डू अडॉप्शन, तो आपको सही में पेशेंस होना चाहिए. ये नहीं कि बस पोस्ट डाल दिया तो अडॉप्ट हो गया. नहीं, जल्दबाजी मत कीजिए. कुछ लोग का ऐसा है कि बस ये फैमिली अच्छी है दे दो, घर छोटा हुआ तो क्या. नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो सब्र करो, हो जाएगा. अगर नहीं भी हुआ तो उसका लक. बट प्लीज जल्दबाजी में गलत फैसला मत लो कि बाद में प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज ऐसे में कई बार अडॉप्शन फेल भी हुए हैं. तो एक सब्र Okay. रखो. ये बात सही है, एकदम बात सही कही तुमने. ये दूसरी बात मुझे ये Yeah. बताओ, और तो तीसरी बात क्या हो सकती है. व्हाट इज द थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट एडॉप्शन में, क्या जानना Like I said, you लोगों have का you have एनिमल. बोलो. yeah, you have to be 100% sure. The family should be 100% sure. आप ऐसे नहीं एक्साइटमेंट में अडॉप्ट कर लिए. आई थिंक मैं तो आई इनफैक्ट थिंक प्रेफर करती हूँ, मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो. लाइक आप बाहर जा रहे हो तो इफ यू हैव एनी पपीज अराउंड, उनके साथ टाइम स्पेंड करो. या अगर किसी के पास पेट है आपके आसपास तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो. देखो कि आप एडजस्ट कर पा रहे हो क्या नहीं. सो या. ओके. सो टेल मी which is the longest time, कौन से कभी what is the longest time आप रुकी हो कोई स्ट्रे एनिमल को एडॉप्शन
एडॉप्शन होने तक कितना टाइम लगा होगा? एक लॉन्गेस्ट बाप टाइम रे। कितना लगा होगा? अभी एक हैंडीकैप बेबी है जो फाइनली अडॉप्ट हो रही है, मे बी दिस वीक और नेक्स्ट वीक शी इज गोना गो फॉरएवर होम. I waited around 5 months for adoption to find a good Okay. family. Yeah. Wow. Now my next question, yes, that is another speciality which I found about you. You are able to get even like not only normal stray animals you're getting adopted, but even animals with difficulties, disabilities, some kind of illness. Even then, you're able to get them adopted. So I would that say must be I, really challenging. I would say I was very lucky in this case that I was able to get 5 babies adopted, handicap babies. और Wow. सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई जब मेरा क्रिश अडॉप्ट हो गया, विच यू नो अबाउट क्रिश, Yes. जिसके Yes. दोनों पीछे के पैर एम्प्यूटेट करना पड़ा हमको. उसके वक्त मैं बहुत बहुत टेंशन में थी कि इस बेबी का क्या होगा, क्योंकि शेल्टर में तो नहीं डालना था. आई वॉज रेडी टू पे लाइफ टाइम फॉस्टर में रख के, बट इन अ गुड फॉस्टर. बट फिर भी एक टेंशन था कि कोई अडॉप्ट नहीं करेगा इसे तो क्या होगा, फॉस्टर वाले कैसे रखेंगे. And जब वो अडॉप्ट हो गया, and उसकी फॉस्टर मॉम ने उसको अडॉप्ट किया, वो मेरे अडॉप्शन के जर्नी का सबसे खुशी का दिन था जब Wow. I क्रिश can अडॉप्ट हो imagine. गया. I can I imagine. was so happy. I was literally crying for 2 days खुशी के मारे. I called up everyone and Facebook पे ऐसा like adopt हो गया. Because for me it was very hard to believe कि उसको कोई adopt करेगा, क्योंकि उसका केस ही अलग है. तो या जब हैंडीकैप बेबीज अडॉप्ट होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है. अभी रिसेंटली यू नो अबाउट हर सीता, जिसका एक आग चला गया, वो भी अडॉप्ट हो गई. सो Wow. ऐसे 5 बेबीज का अडॉप्शन मैं अभी तक कर पाई जो मेरे पास आ गए. नो एंड तो आई स्टिल ट्राइड. मेरा पहला प्रेफरेंस रहता है कि मैं हैंडीकैप बेबीज को पहले हेल्प करूँ. सो नाइस, सो नाइस. तो मेरा अगला सवाल यही है कि इतना सब आप जब करती हो तो यकीनन आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे. आपके क्या चैलेंजेस है, जरा बताएंगे? आपने क्या क्या मुश्किलें आप फेस करती हैं जब यू आर ट्राइंग टू गेट अ बेबी अडॉप्टेड? यही कि लाइक आई सेड, टू फाइंड अ जेन्युइन फैमिली. और फिर वो ट्रैक रखना, रेगुलर ट्रैक रखना. जब अपडेट नहीं मिलता है तो वो टेंशन कि अरे अपडेट क्यों नहीं मिल रहा है. एंड स्पेशली जब अडॉप्शन फेल होते हैं, जो हुए हैं मेरे केस में, ऐसे नहीं कि मेरे सारे अडॉप्शन सक्सेसफुल रहे हैं, देयर आर सम अडॉप्शन जो फेल भी हो गए. जो अभी रिसेंटली एक अडॉप्शन फेल हो गया था कि मैंने उस फैमिली पे इतना भरोसा किया था, पर मुझे ही उनके पास से बेबी को छीनना पड़ा. लाइक लिटरली छीनना पड़ा. तो ऐसा जब कुछ होता है तो फिर बहुत अपसेट हो जाती हूँ मैं. बहुत डर भी लगता है टाइम्स, मुझे लगता भी है कि मैं गिव अप कर दूं. बट देन आई से टू माई सेल्फ कि नहीं, मेरे मेरे से कुछ तो हो रहा है, मैं कंटिन्यू करूंगी, इससे सीखूंगी एंड I'll कंटिन्यू. तो वो एक बेबी अभी है बाकी जिसका अडॉप्शन होना है. वरना इसके पहले जो अडॉप्शन फेल हो गए, लकीली उनका अडॉप्शन हो गया, मेरे थ्रू किसी और के थ्रू पर हो गया. पर ये एक डर रहता है, वो जरा कंटिन्यूसली रहता है. तो मैंने कहा ना, अडॉप्शन हो गया, इट डजंट एंड देयर. मैं ये फेसबुक पे पोस्ट देखती रहती हूँ कि एक बंदे ने अगर पोस्ट डाल दिया कि आई एम लुकिंग फॉर अ कैट, आई एम लुकिंग फॉर अ डॉग, व्हाटएवर, और उसके नीचे कम से कम 100 लोगों के कमेंट्स तो होते हैं. हर कोई कहता है मेरी बिल्ली को अडॉप्ट करो, मेरे कुत्ते को अडॉप्ट करो. मतलब इतने सारे लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, फॉस्टर कर रहे हैं, और बस अडॉप्टर्स की कमी है. तो जितने लोग तुमको कांटेक्ट करते हैं, जहां भी तुम्हें लोग लिखते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड, एक परसेंटेज अगर मैं पूछूं कि अगर 100 लोगों ने आपको इंटरेस्ट बताया है तो उसमें से कितने लोग आपको लगते हैं जेन्युइन निकलते हैं? एक बहुत अंदाजा कम. पूछ रही हूँ. मैं बहुत अंदाजा पूछ कम. रही हूँ. बहुत कम. मतलब यू कैन से लाइक 20%. बिकॉज बहुत से लोग बस आते हैं, इंक्वायरी करते हैं एंड देन दैट्स इट. उसके आगे नहीं. फिर उनका रहता है कलर्स को लेके, ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए. इट्स ओके. आई मीन देखो, एक इंसानी ये रहता है कि अगर अगर सामने एक व्हाइट बिल्ली हो और एक लाइक ग्रे बिल्ली हो, ऑब्वियसली नजर व्हाइट पे जाएगी. आई डोंट ब्लेम देम. लोगों को ये भी गलत लगता है कलर कलर का क्यों. अरे हर किसी की चॉइस है. एज लॉन्ग एज वो बंदा अडॉप्ट करना चाहता है एक स्ट्रे को, ये बड़ी बात है. सो ये मत सोचो. लेकिन मेरे इसमें ये कि बहुत से लोग, मतलब इतने लोग आते हैं, मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लेट मी नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड रादर देन इग्नोरिंग मी.
बिकॉज यू आर नॉट इग्नोरिंग मी, यू आर इग्नोरिंग दैट बेबी जिसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ. So अगर आप genuinely और अच्छे इंसान हो and really you want to adopt, at least give me some respect, give that baby some respect कि हमें नहीं चाहिए. So बहुत से लोग मतलब आप अगर मेरा फोन देखोगे there are so many messages pending जिसका मुझे रिप्लाई देना है. तो या बहुत कम जेन्युइन लोग आगे आते हैं और फिर तो उसमें आपको से भी अगर अच्छे ढूंढना मुश्किल रहता है. और तुम ये सब अकेली करती हो सबा? नहीं, अभी फिलहाल आई कैन से दैट आई हैव अ ग्रुप आती है, हम लोग मिल के अडॉप्शन एक बच्चे का ट्राई करते हैं. पहले ऐसा था कि मैं अकेली करती थी, अब ऐसा है कि हम ग्रुप मिलके करते हैं. हम आपस में वो पोस्ट शेयर करते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं एंड देन वी ऑल ट्राई टुगेदर. सो आई वोंट से दैट आई एम अलोन नाउ. ओके. पर हर अच्छा. कोई जो भी ट्राई करता है वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. ऐसा नहीं कि भाई कोई और ट्राई कर रहा है तो मैं कम करूँ. हम सब पूरी कोशिश करते हैं कि वो बच्चा अडॉप्ट हो जाए. अगर so if you have to give a message to people who want to adopt stray animals, या if you want to urge people, मतलब लोगों से तुम रिक्वेस्ट अगर करना चाहती हो, बिकॉज मैंने वही देखा कि लोगों में शायद एक किस्म का मेंटल ब्लॉक है स्ट्रे एनिमल्स को अडॉप्ट करने पे. तो आप अगर कुछ Yeah, मैसेज उनके लिए I'm देना glad you asked. चाहती Yeah. हैं तो वो क्या मैसेज आप देना चाहती हैं? I'm glad you asked me this question, or you want me to say, because yeah, बहुत बहुत बड़ा ब्लॉक है, like बहुत बड़ा ब्लॉक है. And I have got to know this because पहले ऐसा था बचपन में कि एक बेबी है, रोड पे है, अकेला है, सेफ नहीं है, तो उसको बस घर मिल जाए, सेफ घर मिल जाए, यू नो. अब ऐसा है, मी एंड माई ग्रुप वी जस्ट वांट पीपल टू वो ब्लॉक हटा दे दिमाग से कि भाई आप ये स्ट्रे और ब्रीड बेबी में फर्क करना छोड़ दो. यू नो, इनमें कोई फर्क नहीं है. बिकॉज काफी टाइम ऐसा होता है कि आई कम अक्रॉस पीपल हु आर लाइक, अरे पर ये तो जंगली बच्चा है, ये ट्रेन होगा क्या? नहीं, इससे ब्रीड बेबी ट्रेन होते. क्यों नहीं ट्रेन होगा? आप करो, वो भी ट्रेन हो जाएगा. जस्ट बिकॉज यू सी डॉग्स बार्किंग ऑन द रोड एंड एग्रेसिव नेचर उनका, इट डजंट मीन कि आप उनको ट्रेन नहीं कर सकते हो. आप उनको भी ट्रेन कर सकते हो, उनको भी डिसिप्लिन सिखा सकते हो. गिव देम अ चांस, उनको जंगली बोलकर मत ये करो. और मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ब्रीड के साथ भी और स्ट्रे के साथ. तो आप अगर मुझसे पूछोगे, मेरे लिए तो वैसे दोनों इक्वल है, आई लव देम बोथ. ऐसा नहीं कि ब्रीड से कोई प्रॉब्लम है मुझे, नो. लाइक आई सेड, मेरा एक्सपीरियंस दोनों के साथ है. लेकिन आप अगर मुझसे पूछोगे तो स्ट्रेस की बात ही अलग है. उनका एनर्जी लेवल, उनका इमोशनल कनेक्शन जो होता है, उनका इम्यून सिस्टम. आई मीन एनी टाइम इफ यू गो टू सी, आई वुड से फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि स्ट्रे आर एनी टाइम बेटर. तो अगर आप ये सोचते हो कि जंगली कुत्ते को या बिल्ली को आप ट्रेन नहीं कर सकते हो, नो यू कैन. सो ये जो माइंडसेट है लोगों का कि ब्रीड ही ट्रेन हो सकते हैं और स्ट्रे नहीं, और ये रीजन बहुत मुझे मिलता है अडॉप्शन में. इससे मैं कह रही हूँ कि लोगों का लेकिन यही रहता है, ये तो जंगली कुत्ता है. लेकिन सबा, तुम्हें क्या? नहीं लगता कि लोग पेट, बहुत सारे लोग जो प्योर ब्रीड के पेट्स खरीदते हैं, इट इज समवेयर इवन स्टेटस सिंबल. इट इज, लोग आई दिखाने मीन के लिए मेरे भी. मेरे या सेलिब्रिटीज को मेरे देख लो. सोसाइटी में, या मेरे से नहीं, बट आजकल सेलिब्रिटीज भी काफी स्ट्रे को अडॉप्ट करने लगे हैं, या बट एंड इट्स मैं रियली. चाहती हूँ कि वो स्ट्रे के साथ, अभी जब जो बाइडेन ने अपना फोटो डाला स्ट्रे के साथ व्हाइट हाउस में, उसके बाद देखिए कितने लोगों ने. तो मैं कह रही हूँ कि व्हाई posing with a stray pet should be not, मतलब वो एक फैशन या स्टेटमेंट क्यों नहीं हो सकता? उसको बनाना चाहिए या आई फैशन मीन स्टेटमेंट. आई हैड अ बिग, बोलते हैं ना, आर्ग्यूमेंट विद माय सोसाइटी पीपल इस चीजों को लेके कि भाई आप बाहर कुत्तों स्ट्रे को खिला सकते हो पर अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते हो. जैसे मेरे पास पर्शियन कैट भी है और स्ट्रे बेबी भी है, मैंने दोनों को सेम अहमियत दिया है. ऐसा नहीं कि पर्शियन लाई तो स्ट्रे नहीं. आई हैव 2 स्ट्रे कैट्स एंड आई हैव 2 पर्शियन कैट्स एंड आई हैव 7 स्ट्रे डॉग्स मेरे होम टाउन में, एंड आई हैव अ ब्रीड डॉग. तो आप क्यों नहीं ऐसे कर रहे हो? आप बस बाहर तक क्यों रख रहे हो? तो ऐसे काफी मेरा ये हुआ है आर्ग्यूमेंट लोगों से. बट या इट इज, बोलते हैं ना, स्टेटस सिंबल की भाई, से ये बोलते हैं ना ब्रीड डॉग है तो वी आर रिच, और जो भी बहुत लोगों की थिंकिंग ऐसी है. पर विद टाइम, आई वुड से विद टाइम
बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, पीपल आर अडॉप्टिंग। आई मीन मैं बिकॉज आई एम इन दिस, मुझे पता है कि लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड मैं ये कह सकती हूँ कि मैं थोड़ी सक्सेस हो रही हूँ लोगों का माइंडसेट चेंज करने में, विद हेल्प ऑफ यू, विद हेल्प ऑफ दिस इंटरव्यू। शायद हम और भी लोगों का माइंडसेट चेंज यस कर यस। सकते हैं। तो हमारी हमारी संस्था जो आई नेचर वॉच फाउंडेशन है, ये एक्चुअली एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में ज्यादा बात करते थे, तो हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम तो रेस्क्यूइंग या फॉस्टरिंग ये हमारा कॉम्पिटेंसीज है भी नहीं, लेकिन हम अवेयरनेस में जरूर काम कर सकते हैं, हम लोगों में Yeah. अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं इस इशू के बारे में। एंड यही हम कर रहे हैं ये एनिमल वेलफेयर फोर्टनाइट में, कि हम ये इशू को बाहर ला रहे हैं और लोगों को शेयर करवा रहे हैं, कि लोगों को बता रहे हैं कि देखिए ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा लाइफ इस कॉज में डाला हुआ है, एंड दे आर साइलेंट वर्कर्स। एक चीज मैंने देखी है आप लोगों में, जैसे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग ये फेसबुक ग्रुप्स पे अपना काम जो डालते रहते हैं, इसको रेस्क्यू किया है, उसको हेल्प की जरूरत है इसको, तो ये दीज आर ऑल साइलेंट वर्कर्स, सिर्फ साइलेंटली काम करते हैं, कोई शोषा नहीं है इसमें। Yeah. क्या? और नहीं जो बट शोषण नहीं हो रहा है, तो जो जनरल पब्लिक है ये जानती ही नहीं कि इस किस्म के लोग यहाँ रहते हैं और वो इस एग्जैक्टली किस्म का काम कर रहे हैं। तो मैं चाह रही थी कि पीपल लाइक यू कैन एक्चुअली इंस्पायर सो मेनी। Like I got inspired. I'm telling you, I got inspired by you, the kind of work what you're doing, and that is giving me inspiration. That can I do a bit? Can I do my bit? What I'm good at? I'm good at doing all this kind of sessions. That is my forte. So can I do my bit? So I think many of you can actually come out in open, and talking about it is very important, and there's a reason this platform is being used. Now, Sabah, my last question to you is that what is your advice to people who want to get into the field, in your field, who want to start do a change, like I want to make a change for my lane cats and lane dogs. Okay, so can I, how they can, if they want to go ahead and get those animals adopted, what would be the advice you will be giving to them, people who are starting fresh? पहली बात तो मैं उनको ये कहूंगी, डरो मत, Okay, शर्माओ मत। ओके शर्माओ मत, मतलब कुछ that's लोगों good. का ऐसा रहता है कि डरते हैं कि भाई लोग हम पे गुस्सा करेंगे, दैट वी आर फीडिंग स्ट्रे एनिमल्स। यू हैव अ कंप्लीट राइट टू फीड एंड नोबडी कैन स्टॉप यू। रिमेंबर दिस फर्स्ट, नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके, आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको कोई स्टॉप करे, तो पहले तो ये डर निकाल दो, कोई आपको हार्म नहीं कर सकता है। दूसरी बात, शर्माना बंद कर दो। आई नो जिनका मैंने अभी उनका चेंज कर दिया है थिंकिंग। आई नो, आई यूज्ड टू नो सम पीपल जो रात को जाके फीड करते थे कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, दे यूज्ड टू फील एम्बैरेस्ड। हम लाइक व्हाई, इनफैक्ट डे टाइम पे जाके फीड करो, पब्लिक एरियाज में जाके फीड करो कि लोग देखें कि हम क्या कर रहे हैं। आई एम श्योर 10 में से कोई एक बंदा तो ज्वाइन करेगा हमको। इसलिए पहले मैं कभी अपने रेस्क्यूज के बारे में फेसबुक पे शेयर नहीं करती थी। मेरा भी थोड़ा बहुत ऐसा था कि मैं क्यों शेयर करूं, मैं कर रही हूँ अपने खुशी के लिए करूँ। बट अब मैंने डिसाइड किया कि आई शेयर, I'll inspire people, I'll let people know what I'm doing. So मुझे देख के अगर एक भी बंदा आगे आ गया तो उतना हेल्प हो जाएगा। तो share your experience, share your work on social media. Like I said, we are blessed to have this platform. Show your work. कुछ लोगों को लगता है हम show off कर रहे हैं। No, we are not. We are trying to spread awareness. I know, we want people to come join us. And that's how I have got to know so many ladies and gents भी मैं कह सकती हूँ, but ladies जो मुझसे ज्यादा करते हैं, they go out of the way and do stuff. And I really want to, like I said, मेरे मॉम और उनके लेवल पे आना है। So ये कैसे पता चला? सोशल मीडिया से, शेयर करने से। तो शेयर योर वर्क, डरो बिल्कुल मत। आप 10 को, और ऐसा नहीं है कि आपको 15-20 कुत्तों को खिलाना है, एक से स्टार्ट करो। और एक मैसेज देना है मुझे फीडर्स को कि भाई जब आप फीड करने जाओगे, जस्ट डोंट फीड द डॉग्स और कैट्स, चेक भी करो अगर किसी को मेडिकल अटेंशन चाहिए या कुछ। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते हो तो आप तो हेल्प, इट्स ओके, इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। मैं भी फंड अपील करती हूँ, बिकॉज हम अकेले कितना कर सकते हैं। तो इस सब चीजों में सबसे 2 ही बात इंपॉर्टेंट है, डरो मत और शर्माओ मत। काफी लोग इज अ वेरी वैलिड थिंग, क्योंकि मैं बहुत शर्माती हूँ बाहर जाके किसी डॉग या कैट के लिए कुछ करने के लिए। yes, I'm thinking, so I'm just नहीं, मैं तो कहीं भी you if you check my bags and it's not only me, हम मेरे जैसे
हर दूसरा बंदा, अगर आप हमारे बैग चेक करोगे, यू विल फाइंड डॉग फूड, कैट फूड, और हम कहीं भी Yes, शुरू yes. होते, वी डोंट केयर हमें क्या लोग बोले, वो वी आर ऑलवेज No. रेडी टू फाइट, बिकॉज जब तक Yes. हम मुंह खोलेंगे नहीं तब तक ये प्रॉब्लम बहुत सॉल्व सही, नहीं होगा. सो वी बहुत सही बोला. हैव टू टेक अ स्टैंड. ये शर्मा के डर के नहीं चलेगा. अगर I सोसाइटी वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, स्पीक टू देम. हैव अ गट्स, उनसे डर के मत, बिकॉज ऐसे तो फिर सबको दबा देंगे. क्योंकि अभी तक अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमारे स्ट्रेस को लेके बहुत अभी भी प्रॉब्लम हो रहे हैं. है, बहुत सो हम प्रॉब्लम लोग है. सो हम लोगों को मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. मे बी बड़े लेवल पे ना कर सके, पर छोटे से तो शुरुआत करो, स्टार्ट करो तुम. पीपल विल ज्वाइन. इफ यू सी माई लिस्ट, फ्रेंड लिस्ट आप देखोगे, आई हैव मोर देन 3,000 people, and I can bet you any money that around 3,000 people are into all this, and this is just people who are in my list. बहुत से लोग हैं, तो ऐसा नहीं है एक दो लोग हैं. बस आप आगे बढ़ो, देखो कितने लोग ज्वाइन होंगे. Okay, सो जस्ट great. कोशिश करो. Okay. ये So, मैसेज है. yes, Sabha, I think that's very लॉन्ग inspiring. मैसेज I था. think very inspiring. In fact, मैंने अभी मेरे पर्स में डॉग फूड रखना स्टार्ट किया है. I Yeah. started doing that. I realized that because कितनी बार मैं रास्ते पे जाती हूँ, मुझे लगता है ओ मुझे कुछ करना चाहिए. Yes, that's a very valid point which you mentioned. Okay, Sabha, I think we have come to our end, and at the end of it, I would like to really tell the audience that Sabha has started a foster home for cats. Thank you. And would you like to say something about it, Sabha, before we, close Yeah, for about today? my foster, it's gonna start soon, and हमारे foster का highlight ये है कि we gonna provide camera access to everyone. So instead of asking us for update, you can check on your baby any time of the day, 24/7. आपको पासवर्ड दिया जाएगा, आप देख सकते हो. सो जो डर रहता है लोगों को फॉस्टर में बेबी देने के वक्त कि मेरे बेबी कैसा होगा, बिकॉज जब अपडेट मांगते तो ऑफकोर्स अच्छा ही अपडेट मिलेगा. यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड Yes, द yes. बैक. सो हमारे फॉस्टर में ऐसा है कि वी गोना गिव यू कैमरा एक्सेस, वी गोना गिव यू पासवर्ड, आप कभी भी अपने बेबीज को देख सकते हो. और हम लोग रेस्क्यू बेबीज का अडॉप्शन भी ट्राई करेंगे. सो इट्स नॉट दैट वी आर ओनली बिहाइंड मनी. ऑफ कोर्स वी नीड मनी, बिकॉज हमको उन Money is पैसों से important. रेस्क्यूज को ही हेल्प करना है. पर हम लोग साथ में ट्राई भी करेंगे अडॉप्शन के लिए. तो अगर आप अपना रेस्क्यू बेबी लेके आ रहे हो, सो बी अश्योर्ड कि हम लोग उनका अडॉप्शन का भी ट्राई करें, बिकॉज आई एम इनटू ऑल दिस. एंड दूसरा ये है कि वी गोना प्लान अडॉप्शन कैंप रखने का सोच रहे हैं हम लोग. वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द आइडिया, जहाँ पे आप अपने बेबीज को वहां पे लेके आ सकते हैं. वी गोना इनवाइट पीपल टू कम एंड सी. सो ये सब चीजें माइंड में है जो हम लोग सोच रहे हैं करने के लिए. सो इट्स गोना बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉस्टर, एंड आई Yes. जस्ट होप दैट पीपल कम. आपकी foster का नाम क्या है? Happy Cats Foster. Okay, so a big shout out for Happy Cat Foster, Thank and thank you you. so much, Sabha, and Yeah. God bless you for the work what you're doing, and may you continue to inspire more people and more stray cats and dogs get blessed because of you. Thank So you. thank you so Thank much you. for joining us today. Thank you And for giving me this opportunity. I was very nervous, but I guess पूरे इंटरव्यू में थोड़ा वो नर्वसनेस चला गया अभी. इनफैक्ट पूरी तरीके से चला गया. तुमने I अभी just hope बोला है whatever I वरना said made sense. Yeah. वरना नर्वसनेस महसूस तो हुआ नहीं है. So चलो great, good. thank you so much. Thank अभी you तो so हमारे पास much. ज्यादा so thank you प्रवीण, thank you आयुष्मान. हमारे दो ऑडियंस थे, बिकॉज काफी लोगों ने ज्वाइन किया था, बट बिकॉज हमारा टेक्निकल ग्लिच चल It's रहा है तो okay. हम They can चले watch गए. the video later. हाँ, they can watch the video and you also share the video on your network so people can Sure. see about you. So thank you Sure, so I much, and will. thank you friends. Thank you. So Thank good you. evening. Yeah, Thank you. Best of luck. Yeah. yes, Bye. thank you.